یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کی 4 لیننگ اگست 2025 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر، نتن گڈکری۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں جموں کشمیر ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کام کاج اور مستقبل کے لائحہ عمل کا لیا گیا جائزہ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج دن بھر کی کارروائی کی گئی۔ ملتوی اڈانی معاملے اور راہل گاندھی کا بیان آج بھی دونوں ایوانوں میں چھایا رہا اور اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر بٹامالو کو پبلک ہیلتھ کیئر، حفظان صحت اور انفیکشن کنٹرول کے لیے کایا کلپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گزشتہ سال حادثات کی کل تعداد 648 رہی اور مجموعی طور پر 93 اموات ہوئیں۔ لوک سبھا میں نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمان حسنین مسعودی کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر موصوف نے یہ جانکاری دی۔ نتن گڈکری نے کہا کہ شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑکوں کی بندش صرف چند گھنٹے جاری رہی، کیونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے مٹی کے تودوں اور پتھروں کو ہٹانے اور ٹریفک کو جلد سے جلد معمول پر لانے کے لیے حساس مقامات پر فوری ریسپانس ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ اپنے جواب میں نتن گڈکری نے مزید کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے حال ہی میں مکمل ہونے والے منصوبوں پر طبی امداد کی چوکیاں تعمیر کی گئی ہیں اور زیر تعمیر پروجیکٹوں میں میڈیکل ایڈ پوسٹ کی تعمیر کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل ہائی وے 44 جموں سری نگر سیکشن کے 260 کلومیٹر کی لمبائی میں سے تقریباً 210 کلومیٹر کی 4 لیننگ مکمل ہو گئی ہے، جس میں سے 21.50 کلومیٹر پر مشتمل 10 ٹنلیں شامل ہیں۔ باقی ماندہ 50 کلومیٹر میں 4 لیننگ بشمول 6 سرنگیں اور پلوں پر کام جاری ہے، جسے اگست 2025 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گڈکری نے مزید کہا کہ ان سرنگوں اور پلوں کی تکمیل کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات سے زیادہ تر آزاد ہو جائے گی اور جموں اور سری نگر کے درمیان تمام موسمی رابطے کو یقینی بنایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو راؤ بھٹناگر نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں جموں کشمیر ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی 52 اور 53ویں سالانہ جنرل میٹنگ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 68ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری شعبہ زرعی پیداوار اٹل ڈلو کے علاوہ کئی متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ سالانہ جنرل میٹنگ میں بورڈ نے آرگنائزیشن کے کام کاج سے جڑے کئی حساس معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ کارپوریشن کے مالی معاملات کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیوں اور طریقہ کار پر بھی بحث کی گئی۔ اس موقع پر کارپوریشن کو نفع بخش بنانے اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کرنے پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ بورڈ نے کارپوریشن کے منتظمین کے مالی سال 2022-23 کا آڈٹ مکمل کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد مشیر بھٹناگر نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں کارپوریشن کی کل ترقی اور اسے سرگرم عمل بنانے کے حوالے سے کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ اس موقع پر مشیر بھٹناگر نے کارپوریشن کے انتظامیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ زرعی شعبہ اور اس سے جڑی صنعتوں کی پائیدار ترقی کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے ایگرو انڈسٹری کا اہم رول بنتا ہے۔ انہوں نے کارپوریشن پر زور دیا کہ وہ کسانوں کی روزمرہ زندگی میں سدھار لانے اور زرعی شعبے سے جڑے اقتصادی امور کو بہتر بنائیں۔
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोक सभा और राज्य सभा में आज अडानी ग्रुप के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने और भारतीय जमहूरियत पर उनके तबसरे जैसे मामलात पर दिन भर की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बजट इजलास के दूसरे दौर का ये मुसलसल 11वां दिन है जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना पड़ा है। पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ऐवान के वस्त में जमा हो गए और जेपीसी तश्कील देने का मुतालबा करने लगे। टीएमसी, जेडीयू और दीगर मेंबरान उनके साथ खड़े थे। शोरगुल के दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई आज जब शुरू हुई तो इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। कांग्रेस पार्टी के मेंबरान अडानी ग्रुप मामले में जेपीसी तश्कील दिए जाने का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में जमा हो गए। डीएमके, टीएमसी, बाएं बाजू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के मेंबरान खड़े हुए थे। शोर शराबा जारी रहने की वजह से चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल ऐवान में खवातीन मुक्केबाजों निखत जरीन, लवलीना बोरगेन, नीतू गंगहास और सोप्टी बोरा को खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी गई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इसको गैर मामूली हुसूलियाबी करार देते हुए कहा कि ये नारी शक्ति के उभरने का दौर है। कोविड-19 के लिए तैयारियों का जायजा लेने की खातिर सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों के सेहत से मुतल्लिक सेक्रेटरियों और आला अफसरान के साथ कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की। गुज़श्ता हफ्तों में मुल्क में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र ये आला सतही मीटिंग हुई। उन्होंने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेहत से मुतल्लिक तहकीक के शोबे के ज़रिए जारी की गई मुश्तरका एडवाइजरी पर अमल करने के लिए कहा। सेक्रेटरी मौसूफ ने हर किसी से कोविड-19 की रोकथाम के मुनासिब तौर तरीकों पर अमल करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के टीके की एहतियाती खुराक देने के अमल में तेजी लाने पर भी जोर दिया। राजेश भूषण ने हर एक पर जोर दिया कि वो हर वक्त कोविड मुनासिब रवैये की पैरवी करें। उन्होंने रियासतों को 10 और 11 अप्रैल को तमाम सेहत की सहूलियात पर फर्जी मशकें करने का मशवरा दिया ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक और इंसानी वसाइल समेत अस्पताल के बुनियादी ढांचे की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाया जा सके। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में हुई। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर जेपी नड्डा, पार्टी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह और कई लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजी इंसाफ का हफ्ता मनाएगी। 6 अप्रैल पार्टी का यौम तासीस है और हफ्ते भर चलने वाला प्रोग्राम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 14 अप्रैल को खत्म होगा। मेघवाल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी के सभी अरकान पार्लियामेंट को ये हिदायत दी है कि वो 15 मई से 15 जून तक अपने अपने इंतखाबी हलकों में सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी फैलाएं। इन्हीं तारीखों में सरकार मरकज में अपने 9 साल मुकम्मल करेगी।
सऊदी अरब में उम्रे पर गए हुए 20 जायरीन कल उस वक्त जाँ बहक हो गए जब एक बस पलट गई। इस हादसे में 29 मजीद जायरीन जख्मी हुए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया। मुतासरीन उम्रा करने के लिए मक्का शहर जा रहे थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत तालीम ने अपने फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए मुल्क भर में तकरीबन 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है। वजारत ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समेत 2,50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों से इदारों का इंतखाब किया गया है। श्रीनगर जिले में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बटामालू को इस साल जम्मू कश्मीर से पब्लिक हेल्थ केयर में सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और इन्फेक्शन कंट्रोल के तरीकों को फरोग देने के लिए यूपीएचसी के जुमरे में कायाकल्प अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। यूपीएचसी बटामालू ने सफाई और इन्फेक्शन कंट्रोल के मयारी प्रोटोकॉल पर अमल करने में मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। कायाकल्प अवार्ड हर साल सेहत की सहूलियात, सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के आला मयार के साथ दिए जाते हैं। कायाकल्प अवार्ड पर तबसरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि यूपीएचसी बटामालू के हमारे सरशार अमले की मुखलिसाना काविशों और मेहनत को सराहा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने यूपीएससी बटामालू के अमले को मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया कि वो मजीद जोश और लगन के साथ काम करें और मरीजों के साथ हमदर्दी से पेश आएं। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड उनके कंधों पर सेहत की सहूलत में सफाई सुथराई को बरकरार रखने के लिए मजीद जिम्मेदारियां लेकर आया है। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को करोड़ों लोगों से बराह रास्त जुड़ जाते हैं। ये सिलसिला अगले महीने 100वें शुमारे के साथ जारी रहेगा। इस खास मौके पर आकाशवाणी ने मन की बात के उन चुनिंदा प्रोग्रामों से इक्तबासात का एक खाका पेश करने का सिलसिला 15 मार्च से शुरू किया है, जिनसे मुल्क को एक नई जोहत मिली है। 2017 में वज़ीर-ए-आज़म ने आइन के जरिए लोगों के हुकूक की बात की। साथ ही उन्होंने मुल्क की तरक्की, आइन के हवाले से लोगों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया है। आज की कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम का वो खास हिस्सा सुनते हैं जो उन्होंने 29 जनवरी 2017 को यौम जमहूरिया के बाद मन की बात प्रोग्राम के शुमारे में पेश किया था, जिसमें उन्होंने आइन और जमहूरियत के हवाले से बात की थी। भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, एक प्रकार से ये संस्कार उत्सव भी है जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक भी करता है, संस्कारित भी करता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार, उस पर जितनी बहस होनी चाहिए, जितनी गहराई से बहस होनी चाहिए, जितनी व्यापक रूप में चर्चा होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूं कि हर स्तर पर, हर वक्त जितना बल अधिकारों पर दिया जाता है उतना ही बल कर्तव्यों पर भी दिया जाए। मारूफ तालीमदान जवाहरलाल कोल कल शाम जम्मू में मुख्तसर अलालत के बाद फौत हो गए। जवाहरलाल कोल ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के शोबा खबर के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कोल के वालिद थे। जवाहरलाल कोल की असल सुकूनत अच्छन पुलवामा की थी, जिसके बाद उन्होंने पिंगलिना पुलवामा में सुकूनत इख्तियार की थी। ऑल इंडिया रेडियो के शोबा खबर की पूरी टीम के साथ साथ स्टेशन से वाबस्ता एहलकारों ने जवाहरलाल कोल के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। कई समाजी तंजीमों ने भी मारूफ तालीमदान जवाहरलाल कोल के इंतकाल पर रंजो मलाल का इजहार किया है। मौसम
महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही